ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کپڑا فروش حاضر ہوا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی وادی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ سنسان وادی کے اندر کون رہ رہا ہے۔ میں گھوڑے سے اترا اور جب اس جھونپڑی کے اندر گیا تو ایک بوڑھی عورت بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو کہا، آپ یہاں اکیلی اس سنسان وادی کے اندر کیوں رہ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا، یہ بڑی لمبی داستان ہے۔ تو میں نے اسے کہا، تو میرے ساتھ چلو، میں حکیم کے پاس آپ کو لے جاتا ہوں تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکے، اور میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا تاکہ آپ کی دیکھ بھال کر سکوں۔ لیکن اس نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس میری ایک خواہش ہے جو پوری کر دو۔ میں نے کہا، اماں جان، کون سی خواہش؟ اس نے کہا، بیٹا، جو میں آپ کو کہنے والی ہوں وہ بہت حیران کر دینے والی بات ہے، لیکن میری خواہش ضرور پوری کرنا۔ میں نے کہا، اماں جان بتائیے۔ اس نے کہا، بیٹا، میں مذہب سے ایک ہندو عورت ہوں اور میرا شوہر پنڈت ہے، لیکن میرے پاس 2 گائے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان 2 گائے کو بیچ کر ان سے حاصل ہونے والی رقم سے گاؤں کے درمیان میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کرواؤ، اور یہ میری آخری خواہش ہے۔ سلطان معظم، یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک ہندو عورت مرتے ہوئے آخر مسجد تعمیر کرنے کی خواہش کیوں رکھتی ہے۔ مجھے بڑا تجسس ہوا اور میں نے پوچھا، اماں جان، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ ہندو ہیں اور آپ کی خواہش ہوتی کہ ایک مندر تعمیر کیا جائے اور آپ کہتی ہیں کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو سلطان معظم، اس نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ سلطان معظم، میں نے اس کی خواہش کے مطابق مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بوڑھی عورت سے جا کر پوچھیں کہ آخر ایک ہندو عورت ہو کر جو کہ مرتے ہوئے بھی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ایک مسجد تعمیر کرانا چاہتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر درباری بھی بڑے حیران ہوئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب اس جھونپڑی کے اندر پہنچے تو بوڑھی عورت بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اس سرزمین کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، اور مجھے فلاں آدمی نے بتایا کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ مسجد تعمیر کروانا چاہتی ہیں، حالانکہ آپ کا مذہب ہندوؤں کا ہے، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے اپنے دوپٹے سے بندھی ہوئی ایک چٹھی کھولی، اور جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو چٹھی دکھائی تو وہ چٹھی پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ہندو عورت یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر ایک مقبول نامی کپڑا فروش آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب انسان تھا۔ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیوی تھی۔ بازار کے اندر اس کی ایک چھوٹی سی کپڑوں کی دکان تھی، لیکن اس کی دکان چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اس کی دکان میں اعلیٰ قسم کے کپڑے ہوتے تھے۔ دور دور سے لوگ اس چھوٹی سی دکان پر مقبول فروش کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے آتے، حتیٰ کہ بڑے بڑے جاگیرداروں کے کپڑے بھی مقبول کپڑا فروش کی دکان سے جاتے۔ وقت گزرنے لگا اور مقبول فروش اپنی اس چھوٹی سی دکان سے زندگی کا گزر بسر کر رہا تھا۔ مقبول کی دل میں کبھی بھی زیادہ دولت کمانے کا لالچ نہ ہوا، بس وہ جتنا کما لیتا اس پر رب کا شکر ادا کرتا اور رب کی رضا میں خوش رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دکان میں دوپہر کے وقت کپڑوں کی گٹھڑی کے ساتھ ٹیک لگائے آرام کر رہا تھا، اتنے میں کوئی آدمی دکان کے اندر داخل ہوا اور اس نے سلام کیا۔ اس آدمی کے سلام کرتے ہی مقبول کپڑا فروش کی آنکھ کھل گئی اور اس آدمی کو دیکھ کر
वो उठ खड़ा हुआ और उसे अपने गले से लगा लिया और सलाम का जवाब दिया। वो आदमी कोई ग्राहक नहीं था, बल्कि मकबूल कपड़े फरोश का एक करीबी दोस्त था, जो कि दूसरे बड़े गांव में रहता था। मकबूल ने उसे अपने साथ बिठाया और सामने खड़े रेहड़ी पर लगाए मशरूब फिरोश को आवाज़ लगाई, मशरूब फिरोश, 2 ठंडे गिलास मशरूब के ले आओ। मकबूल ने उसे ठंडा मशरूब पिलाया और आने की वजह दरियाफ्त की तो उस आदमी ने अपने थैले से एक छोटी सी थैली निकाली और मकबूल के हाथों में देते हुए कहा, ऐ मेरे दोस्त, मैं बहुत तवील सफ़र पर जा रहा हूँ और मेरे पास ये थैली देख रहे हो, इसके अंदर 1000 सोने के सिक्के मौजूद हैं। सफ़र काफ़ी तवील और रास्ता सुनसान है, लिहाजा मैं ये थैली आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, ताकि रास्ते में इस थैली की वजह से मेरी जान को खतरा ना हो। मकबूल ने उसे यकीन दिलाया कि आपकी अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। उस आदमी ने मकबूल का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। मकबूल बड़ा खुश हो रहा था कि एक गरीब दोस्त पर मेरे दोस्त ने इतना भरोसा किया और इतनी बड़ी रकम मेरे पास अमानत रख कर जा रहा है। वो इसी खुशी में बैठा था कि इतने में 3 घोड़सवार मकबूल कपड़े फरोश की दुकान के सामने आकर रुके। अंदर दाखिल होते ही उन तीनों घोड़सवारों ने मकबूल को कहा, अरे मियाँ, आपके पास कोई अच्छे से लिबास पड़े हुए हैं? मकबूल ने कहा, जी हाँ हुजूर, मेरे पास बड़े बड़े कीमती लिबास पड़े हुए हैं। तो इतने में एक घुड़सवार ने एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा, अरे मियाँ, फलां कपड़े से हमें 3 लिबास काट दो। हम तीनों भाई हैं और हम तीनों एक जैसा लिबास पहनते हैं। मकबूल ने कहा, आप शक्ल से बड़े घराने के लगते हैं, लेकिन वो लिबास बड़ा महंगा है। वो लिबास तो बड़े बड़े जागीरदार खरीद कर ले जाते हैं। तो उन तीनों लड़कों में से एक ने कहा, क्या तुमने हमें भिखारी समझा है? तुम जानते हो हम कौन हैं? मकबूल ने कहा, जी नहीं हुजूर, मैंने आपको पहली मर्तबा देखा। तो उन तीनों घोड़सवारों में से एक ने कहा, हम योगीसार किले के हाकिम के बेटे हैं। ये सुनकर मकबूल ने कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। मकबूल फौरन उठा, कोने में पड़ा हुआ कपड़ों का बंडल ले आया और उसमें से 3 सूट काट कर दिए। उन दोनों ने कपड़ा लिया और घोड़े की जीन में रखने के बाद वहाँ से जाने लगे। तो मकबूल ने पीछे से आवाज़ लगाई, हुजूर, इस कपड़े की रकम अदा नहीं की। तो उन तीनों ने कहा, ये कपड़े की रकम तुम कल आकर ले जाना। ये सुनकर मकबूल कपड़े फरोश ने कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सवारी नहीं और योगीसार किला बहुत फासले पर है। आप मुझ पर मेहरबानी करें और मेरे दाम मुझे दे दें। तो उन तीनों ने मकबूल कपड़े फरोश की कोई बात न सुनी और घोड़े दौड़ाकर वहाँ से चले गए। अगली सुबह मकबूल कपड़े फरोश ने दुकान खोलने से पहले ही गधे पर सवार हुआ और योगीसार किले की तरफ चल दिया। चलते चलते जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने पूछा, ऐ गधे वाले, तुम यहाँ कैसे? यहाँ क्या करने आई हो? तो मकबूल फरोश ने अपना तारुफ करवाया और कहा, कल शहजादे मुझसे 3 लिबास खरीद कर ले गए थे और मैं उनका मुआवजा लेने आया हूँ। तो सिपाहियों ने कहा, कल वापस आ जाना, अभी हमारे हाकिम आराम फरमा रहे हैं। यह सुनकर मकबूल कपड़ा फरोश बहुत अफसरदा हुआ, लेकिन फिर वापस पलटने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी दुकान पर वापस लौट आया। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया और उसको अपनी रकम डूबती हुई नजर आ रही थी। अगली सुबह अंधेरा ख़त्म होने से पहले ही फिर मकबूल कपड़े फरोश किले के दरवाजे पर पहुंचा तो फिर से सिपाही ने उसे बहाना बनाकर टाल दिया और इसी तरह करते करते 5 दिन गुजर गए, लेकिन वो उसको बस इसी तरह ऐसे ही टालते रहे। 6ठा दिन हुआ तो दरवाजे पर मौजूद एक रहमदिल सिपाही ने मकबूल कपड़े फरोश को कहा, हुजूर, आप ख्वाह मख्वाह में
ऐसे धक्के खा रहे हैं। तीनों शहजादों ने हमें कहा है कि इस शक्ल और इस हुलिया वाला अगर कोई भी आदमी आए तो उसे ये कहकर टाल देना, कल वापस आ जाना। बस वो आपको जलील कर रहे हैं। आप अपनी रकम भूल जाएं, वो आपको नहीं मिलने वाली। ये सुनकर उसने कहा, मैंने बहुत कीमती लिबास दिए और मेरा तो इतना एक माह का मुनाफा भी नहीं बनता, वो कैसे बख्श दूं? तो सिपाही ने कहा, जो मुनासिब बात थी मैंने आपको बता दी, आगे आपकी मर्जी। मकबूल फिरोज वापस आया और आकर दुकान में परेशानी की हालत में बैठ गया और वो सोचने लगा कि किस तरह मैं अपना कर्ज उन तीनों शहजादों से वापस लूं। वो जानता था कि मुझे किले के हाकिम तक भी कभी भी सिपाही नहीं जाने देंगे। एक दिन वो परेशानी की हालत में बैठा था कि उसने देखा कि बाजार के अंदर फिर से वही तीन शहजादे गुजर रहे थे। वो दौड़ता हुआ उन तीनों शहजादों के आगे जाकर खड़ा हुआ और कहा, ऐ शहजादे, मेरी रकम वापस कर दो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तुम्हारे लिए ये बहुत मामूली रकम होगी। ये सुनकर उन शहजादों ने कहा, कौन सी रकम? तो मकबूल कपड़ा फिरोज ने कहा, जो तुमने मुझसे 3 लिबास खरीदे थे और वो बड़े कीमती थे। तो उन तीनों ने कहा, हमें तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, हमने तुमसे कोई लिबास नहीं खरीदा। अरे तुम जानते हो हमारे लिबास तो बड़े बड़े माहिर कारीगर बनाते हैं, एक छोटी सी दुकान वाले से हम क्या लिबास खरीदेंगे। इतने में बाजार के लोग भी कहने लगे, ये तीनों शहजादे सच बोल रहे हैं, इनकी दुकान पर इतने कीमती कपड़े नहीं होते कि शहजादे पहन सकें। मकबूल फिरोज बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं ऐसे घोड़ों के आगे नहीं हटूंगा, जब तक मेरी रकम वापस नहीं करोगे। तो वो तीनों शहजादे उठे और मकबूल फिरोज को पीटना शुरू कर दिया, हत्ता कि उनको इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो सारा जख्मी हो गया और सारे बाजार के ताजिर उसका तमाशा देखते रहे। किसी भी में इतनी जुर्रत न हुई कि आकर वो इन तीनों को एक बेचारे आदमी को पीटते हुए रोक सके। मकबूल फिरोज उठा, अपना मुंह साफ किया और सीधा शहर के काजी के पास पहुंचा। काजी ने जब मकबूल कपड़ा फिरोज को इस हालत में देखा तो फौरन हकीम को बुलाया और कहा कि इसकी देखभाल करो, उसके जख्मों पर मरहम लगाओ। हकीम ने उसका इलाज किया, जख्म साफ किए। मरहम लगाने के बाद काजी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया? तो मकबूल कपड़ा फिरोज ने कहा, हुजूर, चंद दिन पहले योगीसार किले के हाकिम के तीनों बेटे मेरे पास आए और मुझसे 3 महंगे लिबास खरीदे और मुझे कहा, अपनी रकम किले से आकर ले जाना। लेकिन आज 1 हफ्ते से भी ज़्यादा गुजर गया, उन तीनों ने मुझे एक सिक्का भी नहीं दिया। और हत्ता कि जब वो बाजार से गुजर रहे थे तो मैंने अपनी रकम का मुआवजा का मुतालबा किया तो उन्होंने मुझ पर इतना तशद्दुद किया कि मेरे मुंह से खून निकलने लगा। तो इतने में एक सिपाही काजी के पास आया और काजी साहब के कान में कुछ कहा तो उसके कान में कुछ कहते ही काजी का रवैया बदल गया और कहने लगा, तुम जानते हो कि तुमने किसके साथ पंगा लिया? वो योगीसार किले का हाकिम बहुत ताकतवर इंसान है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसके बेटों के साथ पंगा लो? तुम जानते हो अगर वो जाकर पूरे इस्तबल से सारे घोड़े भी खोल लें तो उनको कोई नहीं रोकता। तुम्हारे तो बस 3 लिबास थे, तुम ऐसे समझो कि तुमने शहजादों को तोहफे दिए। मकबूल ने कहा, हुजूर, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तोहफे देता फिरूं। मेरे अपने बच्चे आजिज़ी और इनकिसारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बीवी ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की, क्योंकि वो जानती है कि मेरी इतनी औकात नहीं और मैं तोहफे देता फिरूं। आप अभी और इसी वक्त उन तीनों शहजादों को अदालत में बुलाएं और मेरी रकम वसूल कर दें। तो ये सुनकर काजी ने कहा, तुम जानते हो कि योगीसार किले के हाकिम की तरफ से पैगाम आया है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ज़िंदान में डाल दूं और तेरी दुकान कब्जे में लेकर
योगेश्वर के खजाने में जमा करवा दूं। ये सुनकर मकबूल कपड़ा फरोश रोने पीटने लगा और कहा, हुजूर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आप मेरी मदद करें। तो काजी ने कहा, मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें जेल में नहीं डाल रहा, क्योंकि तेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, लेकिन तेरी दुकान का जितना भी माल है उसे योगेश्वर कला के खजाना में जमा करवाना होगा, और ये मेरी मजबूरी है, वरना योगेश्वर कले का हाकिम मुझे काजी के ओहदे से फारिग कर देगा। मकबूल फिरोज पीटने लगा, रोने लगा, लेकिन उसके रोने पीटने का काजी पर कोई असर न हुआ। इतने में एक बाजार का ताजिर दौड़ता हुआ मकबूल कपड़ फिरोज के पास आया और कहा, हुजूर, जल्दी आए, हाकिम के सिपाही आपकी दुकान का जितना भी माल है वो उठाकर ले जा रहे हैं। मकबूल फिरोज दौड़ता हुआ जब बाजार के अंदर पहुंचा तो देखा कि उसकी दुकान बिल्कुल खाली हो चुकी थी और उसमें एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं बचा था और हाकिम के सिपाही उठाकर ले गए थे। ये देखकर मकबूल फिरोज बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। लेकिन इसके दिल में ये इत्मीनान था कि मैंने एक हाकिम के सामने सर झुकाने से बेहतर उनसे लड़ना मुनासिब समझा। मेरे दिल में ये नहीं कि मैंने उनके साथ अपने हक के लिए लड़ना नहीं। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और चंद दिन गुजरे कि मकबूल कपड़ा फिरोज के दिन इतने बुरे आ गए कि उसके घर के अंदर फाके होने लगे। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से मरने लगे। अब उससे देखा ना गया तो उसने सोचा, जो मेरे दोस्त की मेरे पास अमानत पड़ी है, मैं उससे चंद सिक्के निकाल कर अपना कारोबार शुरू कर दूं, और जब मेरा कारोबार अच्छा खासा चल पड़ेगा तो मैं फिर वो रकम उस थैली के अंदर डाल दूंगा। और वो इस उम्मीद के साथ उस कोठी के अंदर दाखिल हुआ जहां उसने वो थैली रखी थी। लेकिन जैसे उसने उस थैली को हाथ लगाया तो उसका ज़मीर जागा और कहा, ए मकबूल, तुम ये क्या कर रहे हो सकता है कि तुम्हें दोबारा उस कारोबार में इतना मुनाफा ना हो कि तुम अपने दोस्त की अमानत वापस कर सको। इससे बेहतर है कि इस मसले का कोई और ही हल तलाश किया जाए। मकबूल फिरोज ने वो थैली वहीं पर छुपा दी और जाकर बाजार में मौजूद चंद ताजिरों से उधार लिया और अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दिया। चंद दिन तो गुजर गए, लेकिन मकबूल फिरोज के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। वो बड़ा हैरान हुआ कि आखिर मेरी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आता, हालांकि मैं नए लिबास खरीद कर आया हूँ। तो उसने बाजार के चंद ताजिरों से इस बात का जिक्र किया तो ताजिरों ने उसे बताया कि अरे मियाँ, तुम नहीं जानते कि योगेश्वर कले के हाकिम ने बाजार के अंदर ऐलान किया है कि जो भी ग्राहक आपसे कपड़ा खरीदेगा, हाकिम उसको ज़ंदान में डाल देगा, और इसी डर की वजह से कोई भी ग्राहक आपसे कपड़ा खरीदने के लिए नहीं आएगा। ये सुनकर मकबूल कपड़ा फिरोज के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब उसे अपनी बर्बादी और मौत साफ साफ नजर आ रही थी। वो जानता था कि अगर मेरा कपड़ा ना बिका तो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे कर्ज दिया वो मेरे पास आ जाएंगे और अपने कर्ज का मुतालबा करेंगे, और दूसरी तरफ मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। वो बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा कि अब मुझे इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उस हाकिम के साथ मैं नहीं लड़ सकता। तो इतने में वो परेशानी के आलम में अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि उसने देखा कि एक नौजवान उसकी दुकान के अंदर दाखिल हुआ। तो उसके अंदर दाखिल होते ही मकबूल बड़ा खुश हुआ और सोचा कि शायद कोई ग्राहक आया है। तो उतने में उस आदमी ने मकबूल फिरोज को कहा, मैं कोई ग्राहक नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मकबूल फिरोज ने कहा, हुजूर, तुम कौन हो? तो उस नौजवान ने अपने सर से पगड़ी उतारी और नकली दाढ़ी उतारी। तो ये देखकर मकबूल फिरोज के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये वही नौजवान सिपाही था जिसने योगेश्वर कले के दरवाजे पर उसे शहजादों के इरादों के बारे में बताया था। मकबूल कपड़ा फिरोज ने कहा, हुजूर, आप क्या करने आए हैं? तो योगेश्वर कले के सिपाही ने कहा, मैं जानता हूँ कि इस हाकिम के आगे
कोई नहीं बोल सकता, हत्ता कि शहर का काजी भी। और अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें योगिसार किले के हाकिम की एक कमजोरी बता सकता हूँ, जिससे तुम्हें इंसाफ मिल सकता है। तुम हाकिम को अच्छा खासा सबक सिखा सकते हो। तो मकबूल ने कहा, हुजूर बताइए, आखिर ऐसा कौन सा माजरा है? तो उस आदमी ने कहा, इससे पहले भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस योगिसार किले के हाकिम को एक आखिरी वार्निंग दे चुके हैं। मैं जानता हूँ कि अगर तुम मुकदमा लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाओ तो वो तुम्हें ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। और वाहिद वही शख्सियत हैं जो उस हाकिम को सबक सिखा सकते हैं। तुम जानते हो कि योगिसार किला किसका है? उसने कहा, जी हाँ हुजूर, मैं जानता हूँ। वह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का फतह किया हुआ है। और अगर योगिसार किले के हाकिम के इरादों का इल्म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को हो गया तो तुम जानते हो कि वो उस हाकिम का क्या हशर करेंगे। मकबूल को ये बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने आकर कहा, लेकिन मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में कौन जाने देगा? तुम जानते हो, एक गधे पर सवार आदमी को देखकर हर बंदा दूर से ही इसकी गंदी नजरों से देखता है। तो ये सुनकर सिपाही ने कहा, तुम्हें गधे पर सवार होने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरा घोड़ा लो, क्योंकि सफ़र काफ़ी तवील है। और अगर तुम फटे लिबास में भी चले जाओगे तो तुम्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाने से कोई नहीं रोकेगा। उस सिपाही ने मकबूल कपड़ा फिरोज को अपना घोड़ा दिया और कहा, तुम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाओ। मकबूल कपड़ा फिरोज ने सिपाही का शुक्रिया अदा किया, अपनी दुकान बंद की और घोड़े पर सवार होकर सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र करते करते मकबूल कपड़ा फिरोज का गुजर एक सुनसान वादी से हुआ, जहाँ कई सालों से बारिश नहीं हुई थी और वो वादी अब सड़ चुकी थी। उसके अंदर कहीं भी सब्ज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते मकबूल फिरोज अपने ख्यालों में जा रहा था कि उसकी नज़र अचानक एक झोंपड़ी पर पड़ी। वो बड़ा हैरान हुआ कि आखिर इस सुनसान वादी के अंदर कौन रह रहा है। फिर उसने देखा कि दो गायें उस झोंपड़ी के साथ बंधी हुई हैं और चारा खा रही हैं। मकबूल फिरोज बड़ा हैरान हुआ और उसने सोचा, क्यों न जाकर इस झोंपड़ी के अंदर देखा जाए कि आखिर कौन रह रहा है। मकबूल फिरोज ने अपना घोड़ा उस झोंपड़ी की तरफ दौड़ाया। जब वो झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो एक छोटे से दरख्त के साथ, जो कि बिल्कुल सूख चुका था, उसके साथ अपने घोड़े को बांधा और उस झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। झोंपड़ी पर उसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, बेटा आ जाओ, कौन हो? मकबूल कपड़ा फिरोज अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अंदर बिस्तर पर आराम फरमा रही थी। मकबूल कपड़ा फिरोज ने अंदर जाते ही सलाम किया तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया और मकबूल कपड़ा फिरोज को अपने साथ बैठने का इशारा किया। वो साथ जाकर बैठ गया तो बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो मकबूल फिरोज ने कहा, अम्मा जान, मैं मुसाफिर हूँ और फलां गांव से आ रहा हूँ। वो बूढ़ी औरत उठी, उसने गाय का दूध गर्म किया, उसमें शहद मिलाया और मकबूल कपड़ा फिरोज को पिलाया। दूध पीकर उसे बहुत राहत मिली और वह बूढ़ी अम्मा को दुआएं देने लगा। तो फिर से बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटा आखिर आगे तुम कहाँ जा रहे हो? तो मकबूल कपड़ा फिरोज ने बूढ़ी अम्मा को सारा माजरा सुनाया और बताया कि मैं इंसाफ लेने के लिए अपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहा हूँ। तो ये सुनकर बूढ़ी अम्मा सर झुकाए बैठ गई। तो मकबूल फिरोज ने कहा, अम्मा जान, क्या कोई बात है? तो उसने कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं। फिर मकबूल फिरोज ने कहा, अम्मा जान, सारी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन आप इस सुनसान वादी के अंदर क्यों रह रही हैं? तो उसने कहा, बेटा, इसके पीछे लंबी दास्तान है, लेकिन अगर तुम सुल्तान की अदालत में जा रहे हो तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम उस ख्वाहिश का जिक्र सुल्तान के सामने कर दोगे? तो मकबूल फिरोज ने कहा, जी हाँ अम्मा जान, बताइए, आखिर आपकी क्या ख्वाहिश है? तो मकबूल फिरोज को उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं जो ख्वाहिश आपको बताने वाली हूँ शायद उस पर आपको यकीन नहीं आएगा। मकबूल फिरोज ने कहा, नहीं अम्मा जान, बताएं,
आखिर क्या माजरा है? तो उसने कहा, बेटा, मैं हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती हूँ। बाहर 2 गायें बंधी हुई हैं जो आपने देखी होंगी, और मेरी ज़िंदगी के चंद दिन बचे हैं, लेकिन मैं मरने से पहले अपनी ही आँखों से इन 2 गायों को बेचकर इससे मस्जिद बनवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं ये मस्जिद बना सकूँ। ये सुनकर मकबूल कपड़ा फिरोज हैरान और परेशान हो गया। उसने कहा, बूढ़ी अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? आपने कहा कि आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं, और फिर दूसरी तरफ कह रही हैं कि आप अपनी आंखों से एक मस्जिद बनवाना चाहती हैं। ये सुनकर मकबूल फिरोज की हैरत की इंतहा न रही। तो इतने में उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, जी हाँ बेटा, आपने दुरुस्त सुना। मैं मरने से पहले एक मस्जिद बनवाना चाहती हूँ। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहना, कलाम वादी के अंदर एक बूढ़ी अम्मा आपको सलाम दे रही थी और कह रही थी कि मेरी अपनी रकम से मस्जिद बनवा दो ताकि मैं मरने से पहले वो मस्जिद देख सकूं। ये सुनकर मकबूल फिरोज बड़ा हैरान हुआ। पूछा, अम्मा जान, मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, ये बात छोड़ो कि आखिर इसके पीछे क्या माजरा है। मैं जानती हूँ कि ये बात हैरत कर देने वाली है। एक हिंदू औरत मस्जिद क्यों बनवाना चाहती है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ भलाई कर सकते हो तो मेरी ख्वाहिश का जिक्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से ज़रूर कर देना। मकबूल फिरोज हैरानगी के साथ उस बूढ़ी अम्मा की झोंपड़ी से रवाना हो गया। वक्त गुजरने लगा और चंद दिनों के अंदर मकबूल कपड़ा फिरोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह लोगों के मुकदमे सुन रहे थे। तो इतने में जब उस मकबूल कपड़ा फिरोज की बारी आई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपने पास बुलाया और पूछा, ए नौजवान, बताओ तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? तो मकबूल कपड़ा फिरोज की आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मुकम्मल रुदात सुनाई और बताया कि किस तरह हाकिम के बेटों ने मुझ पर जुल्म किया, और जब मैं इंसाफ लेने के लिए काजी के पास गया तो हत्ता के काजी ने मुझे इंसाफ देने की बजाय मेरी सारी जायदाद, मेरी सारी दुकान का माल योगिसार किले के खजाने में जमा करवा दिया, और जब मैं अपने दोस्तों से उधार मांगकर दोबारा अपनी दुकान खोली तो हाकिम ने ऐलान कर दिया कि बाजार में कोई भी ग्राहक आकर मुझसे कुछ भी खरीदता हुआ पकड़ा गया तो उसको ज़िंदान में डाल दिया जाएगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उस हाकिम के साथ मुकाबला कर सकूं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक खत लिखा और सिपाही को दिया कि जाकर इसे अभी और इसी वक्त योगिसार किले के हाकिम के पास पहुंचाओ। सिपाही खत लेकर जब योगिसार किले के हाकिम के पास पहुंचा और जब उसने सुल्तान का खत पढ़ा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बड़ा हैरान हुआ कि एक छोटा सा कपड़ा फिरोज सुल्तान के तक कैसे पहुंचा। योगिसार किले का हाकिम मुंह धोए बगैर अपना घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को कहा कि इस हाकिम को पकड़कर कटहरे में लाओ। हाकिम बड़ा हैरान हुआ और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं किले का हाकिम हूँ और आप मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम इस वक्त हाकिम नहीं बल्कि एक मुलजिम हो, और थोड़ी ही देर में तुझ पर जुर्म साबित हो जाएगा और तुम फिर मुजरिम बनोगे और तुम्हारे साथ मुजरिमों वाला सलूक किया जाएगा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने योगिसार किले के हाकिम से पूछा, बताओ, ये जो आदमी कह रहा है क्या ये सच है या झूठ है? तो ये सुनकर हाकिम ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, ये सच कह रहा है। सुल्तान मुअज़्ज़म, इसने एक हाकिम के बेटे से चंद लिबासों की कीमत दरियाफ्त की और आगे से मेरे बेटों को गुस्सा आ गया और उन्होंने इसे मारा और काजी को कहा कि इसकी सारी दुकान का माल सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाए। तो यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम जानते हो कि जिस किले के अंदर तुम हुक्मरानी कर रहे हो वो इन जैसे गरीब बाप बेटों के खून से फतह किया गया है। तुम इसको अपनी जायदाद समझ बैठे, लिहाजा आज और इसी वक्त तुम्हें उस किले के ओहदे से फारिग किया जाता है
اور تمہیں 3 سال قید کی سزا بمشقت سنائی جاتی ہے اور تیرے بیٹوں کو بھی تیری سزا میں برابر کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ سن کر کلے کہا کہ اسی وقت سلطان کے قدموں میں پڑ گیا اور پھر مقبول فیروز کے قدموں میں پڑ گیا، لیکن مقبول فیروز نے کہا سلطان معظم اس کو صحیح سزا ملنی چاہیے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت وہ قلعہ اس سے چھین لیا اور اس کے تینوں بیٹوں اور اس حاکم کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر مقبول فیروز کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس نے اس سپاہی کا بھی ذکر کیا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور کہا سلطان معظم اس سپاہی کے اندر جتنی ایمانداری جتنی رحم دلی ہے اسے تو فوج کا سپہ سالار ہونا چاہیے، لیکن یہ ظالم حاکم اس کو دروازے پر ایک معمولی سے عہدے پر رکھا ہوا ہے، لہذا اب آپ اس کے ساتھ انصاف کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سپاہی کو اس کی ایمانداری کا صلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس کے بعد مقبول کپڑا فروش وہاں سے جانے لگا تو پیچھے کی طرف دیکھنے لگا، پھر آگے بڑھنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے مقبول آخر کیا ہوا، بتاؤ کیا بات ہے۔ یہ سن کر مقبول کپڑا فروش نے کہا حضور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن کیا آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقبول کو کہا تم بلا جھجک جو بھی بات کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ مقبول کپڑا فروش سر جھکائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور فرمانے لگا سلطان معظم جب میں آپ کے محل کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں میرا گزر ایک وادی سے ہوا اور وہ وادی کافی سنسان اور خستہ حال تھی، کئی سالوں سے اس کے اندر بارش نہیں ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے اندر کوئی رہ رہا ہے اور وہ 2 گائیں باہر بندھی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا اور تجسس کے مارے اس جھونپڑی کے اندر دیکھا تو ایک ہندو عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے میری بڑی خدمت کی اور مجھے دودھ پلایا، تو میں نے اسے کہا میں سلطان کی طرف جا رہا ہوں، تو اس نے مجھے کہا میرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام دینا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تم سلطان کی عدالت میں جا رہے ہو تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ ایک وادی کے اندر ایک بوڑھیا ماں رہتی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بے شک میں مذہب سے ہندو ہوں اور میرا شوہر بھی پنڈت تھا اور ساری زندگی وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن میں مرنے سے پہلے اپنی ان 2 گائیں کو بیچ کر ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ وہ میری مدد کریں۔ سلطان معظم حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ عورت ہندو ہے لیکن وہ مسجد بنوانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سارے درباری سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بڑے حیران ہو گئے کہ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقبول نامی کپڑا فروش کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان اور اپنے چند سپاہی کے ساتھ اس وادی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وادی کے اندر پہنچے تو اس کپڑا فروش کے مطابق وہ وادی بہت سنسان کافی خستہ حال تھی، چند سالوں سے اس وادی میں کوئی بارش نہیں ہوئی تھی، سارے درخت سوکھ چکے تھے، کوئی سبزہ نہیں تھا اور ایک جھونپڑی کے اندر تھوڑا سا دھواں نکل رہا تھا اور 2 گائیں ایک سوکھے درخت کے نیچے سائے میں کھڑی چارہ کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور جب اس جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے تو مقبول فیروز کو دیکھ کر بوڑھی عورت نے کہا حضور یہ کون ہے؟ جب مقبول فیروز نے بتایا بوڑھی اماں آپ اتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی خستہ حال جھونپڑی کے دروازے پر وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت اس وقت سلطان کے قدموں میں گر گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں جان آپ کو قدموں میں گرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی خواہش نے ہمیں اتنا حیران کر دیا کہ آپ کی یہ انوکھی خواہش ہمیں یہاں تک کھینچ لائی۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا حضور میں آپ کو سب بتاتی ہوں، آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور
دیگر سپاہی اور مقبول کپڑا فروش جھونپڑی کے اندر بیٹھ گئے۔ پھر وہ عورت سامنے آ کر بیٹھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ اماں جان، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کی عمر 80 سال سے زیادہ لگتی ہے، آپ کے بال سفید، منہ پر جھریاں آ چکی ہیں، لیکن آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ کی جھونپڑی کے اندر رکھی ہوئی ہر اشیاء ہندو مذہب سے ہے، لیکن آپ کی انوکھی خواہش نے ہمیں حیران کر دیا۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ اس وادی کے اندر ہر طرف سبزہ ختم ہو گیا، کسی درخت پر کوئی سبزہ یا سبز پتا نہ رہا، زمین پر کوئی سبزہ نہ رہا۔ میرے پاس 2 گائے ہیں جن کے دودھ سے ہی میں اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی ہوں۔ اگر ایک گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو دوسری گائے دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، اور اسی طرح میری زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے میں نے دیکھا کہ میرے گائے کو چارہ ڈالنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں اپنی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ جہاں جہاں تک جا سکتی تھی میں نے کوشش کی، لیکن مجھے اپنی گائے کے لیے کوئی چارہ نہ ملا۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ 2 ہندو تاجر یہاں سے گزر رہے تھے، اور ان کے پاس اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے بہت زیادہ چارہ تھا، اور ان کا سفر طویل تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ راستے میں وہ وہاں سے مزید اپنے جانوروں کے لیے چارہ خرید سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا، آپ مجھے تھوڑا سا چارہ دے دیں، میری گائے مر جائے گی اور میرا وہی سہارا یہ 2 گائے ہیں۔ لیکن سلطان معظم، ان ہندوؤں نے مجھ پر ذرا رحم نہ کھایا اور وہاں سے چلے گئے۔ سلطان معظم، 2-3 دن گزرے، اب میری ایک گائے بہت زیادہ نڈھال ہو چکی تھی، اور ایک بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ ان کو ڈالنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب جب کہ وہ بھوکی تھی تو ان کے جسم سے دودھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ مجھے اپنی موت بھی سامنے نظر آ رہی تھی، اور جس جگہ میں رہ رہی ہوں دور دراز تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک مسافر گزر رہا تھا، اس کے اونٹ کے اوپر بہت سارا چارہ لدا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے تقریباً 50 اونٹ قطار میں آ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اونٹ کی قطار کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی اس اونٹ والے مسافر کے پاس گئی اور کہا، حضور، میری گائے بھوک سے مر رہی ہے، آپ میری مدد کریں، ورنہ میری گائے بھوک سے مر جائے گی اور میں بھی بھوک سے مر جاؤں گی۔ حضور، وہ مسافر اتنا رحم دل تھا کہ اس نے سارا چارہ اتار کر جتنا 50 اونٹوں کا تھا وہ بھی مجھے دے دیا، اور کہا، اماں جان، یہ جو چارہ ہے یہ آپ کئی ہفتوں تک آپ کی گایوں کا پیٹ بھرتا رہے گا، اور تقریباً میں 1 ماہ کے بعد دوبارہ اس جگہ سے گزروں گا اور آپ کی گایوں کے لیے میں چارہ لے کر آؤں گا، اور اب آپ کو گایوں کو بھوکا نہیں دیکھنا پڑے گا۔ سلطان معظم، میں نے اسے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا، میرا نام یعقوب ہے اور میں مسلمان ہوں۔ سلطان معظم، وہ جانتا تھا کہ میں ایک ہندو عورت ہوں، اور میرے ماتھے پر بنے ہوئے نشان نے یہ ظاہر کر دیا کہ میں ہندو ہوں، لیکن اس نے میرے مذہب کو نہیں دیکھا، بلکہ انسانیت کی خاطر اس نے میری مدد کی اور میرے گائے کے لیے چارہ دے کر چلا گیا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آگے اسے چارہ نہ ملا تو اس کے اونٹ بھوکے رہ جائیں گے، لیکن اس نے مجھے سارا چارہ دے کر چلا گیا۔ سلطان معظم، میں نے اس سے پوچھا، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ تم دوسرے ہندوؤں کی طرح ایسے بھی جا سکتے تھے۔ تو اس نے کہا، میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس قسم کا دین جو کہ دوسروں کی مدد کرنے کا کہتا ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ سلطان معظم، اس کے بعد میں نے وہ چارہ اپنی گایوں کو ڈالا، ان کی جان میں جان آ گئی۔ سلطان معظم، مجھے دین اسلام میں بڑی دلچسپی ہونے لگی۔ مجھے دین کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اسلام کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب میں دل میں سوچنے لگی کہ جب مروں گی تو میں جانتی ہوں کہ مسلمان کی سب سے مقدس جگہ مسجد ہوتی ہے، اور مسلمانوں سے محبت کی خاطر مرتے وقت ان 2 گایوں سے مسجد بنوا کر اپنی آخری سانسیں ختم کر دوں گی۔ حتیٰ کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ جب تم مرنے لگنا تو کسی کو وصیت کر دینا کہ ان 2 گائے کو بیچ کر وہ ایک مندر بنوا دیں، لیکن میں نے اپنی یہی آخری خواہش کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری ان 2 گایوں سے مسجد بن جائے۔ اس لیے سلطان معظم، میں نے اس خواہش کا اظہار کیا
सुल्तान मुअज़्ज़म मैं अकेली मस्जिद नहीं बना सकती, इसलिए मैंने इस मुसाफिर को कहा कि मेरा पैगाम आप तक पहुंचा दें। और सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मुसाफिर की मदद ने मेरे दिल पर इतना असर किया कि मैं अब इस बात पर मजबूर हो गई हूँ कि एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मेरे दिल में मस्जिद के लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि मैं सब कुछ बेचकर मस्जिद बनाने की ख्वाहिश रखती हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए कि एक बूढ़ी औरत को एक मुसाफिर की बात में इतना असर आया कि एक पंडित की बीवी होकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए इतनी मोहब्बत हो गई। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अम्मा जान, अगर आपको इस्लाम से इतनी मोहब्बत है तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। तो उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़ी औरत को कलमा पढ़ाया और फिर उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश के मुताबिक एक आलीशान मस्जिद तामीर की गई और उस मस्जिद का नाम उस बूढ़ी औरत के नाम से मौसूम किया गया। और ये बात पूरे मिस्र के अंदर मशहूर हो गई कि एक पंडित की हिंदू बीवी मुसलमान होकर अपने नाम से इतनी आलीशान मस्जिद बनवाई। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।